پھیلاتے جنوبی پنجاب میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دریا ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ بھارت کی پاکستان کو ہریکے اور فیروزپور کے مقامات پر ممکنہ ہائی فلڈ کی اطلاع۔ محکمہ انڈس واٹرز نے ہائی فلڈ وارننگ جاری کرتے ہوئے صوبائی اور ضلعی حکام کو الرٹ کر دیا۔ گڈھا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا اور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ یہاں پانی کی آمد 1,33,000 کیوسک اور اخراج بھی 1,33,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 1,21,000 کیوسک ریکارڈ ہوا اور اخراج بھی 1,21,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ایمپریس برج پر پانی کی سطح بلند ہو کر 12.8 فٹ ہو گئی۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ 3,96,000 کیوسک ہو گیا۔ ادھر دریا چناب میں سیلاب کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ موزہ گاگرا، حسن کچور اور مرزا پور میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے۔ ملتان میں شیرشاہ بند میں شگاف ڈالنے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ ہیڈ محمد والا پل پر بھاری ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ حسن ملک ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مزید تفصیلات حسن ملک کی زبانی جانیں گے۔ آج جی دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو سیلابی صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اگر گزشتہ رات کی بات کی جائے تو گزشتہ رات کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو شیرشاہ بند ہے اس پر پانی کا فلو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو کریٹیکل گیج تھا اس سے تجاوز کرنے کی وجہ سے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شیرشاہ بند میں شگاف ڈالا جائے گا، اور شگاف ڈالنے کے بعد پانی کا جو فلو ہے وہ قریبی بستیوں کی جانب موڑا جائے گا۔ لیکن گزشتہ رات کا یہ فیصلہ تھا۔ ابھی تک کی بات کی جائے تو ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے شیرشاہ بند میں کوئی شگاف نہیں ڈالا جا سکا۔ اس وقت جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ بستی گاگرا ہے۔ بستی گاگرا کافی پہلے سے ہی زمیندارہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے بستی گاگرا میں پانی آ چکا تھا، اور پانی آنے کی وجہ سے جتنے گھر بھی تھے وہ سیلابی پانی میں زیر آب آ چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بستیاں ہیں جن میں اگر ڈسکس کروں حسن کچور، مرزا پور اور جو مزید دیگر بستیاں ہیں قریب کی، ان میں سے مکمل طور پر شہریوں کا انخلاء کروایا جا چکا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ میں جو لوگ ہیں انہیں منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ تو آج شام تک کی صورتحال تھی۔ اس وقت کی جو کرنٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شیرشاہ روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، مکمل طور پر بیریئر لگا کر ہر قسم کے ٹریفک بند تھی۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، جو موٹر سائیکلیں ہیں اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں انہیں اس روڈ سے گزارا جائے گا، کیونکہ یہ اگر میں بتاؤں تو یہ بیسیکلی مین روڈ ہے شیرشاہ والا، جو کہ ملتان سے کنیکٹ کرتا ہے ڈی جی خان، مظفر گڑھ اور آگے یہ سارا ساؤتھ والی جو لائن ہے اسے کور کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک مین سڑک ہونے کے ساتھ ساتھ جو قریبی بستیاں ہیں ان کو بھی یہ سڑک لگتی ہے، لیکن یہاں سے ہیوی ٹریفک کثیر تعداد میں گزرتی ہے۔ لیکن انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہیوی ٹریفک کو مکمل طور پر اس روڈ سے بند کر دیا جائے گا، اور جو چھوٹی ٹریفک ہے اسے اس روڈ سے گزارا جائے گا۔ بریچنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انتظامیہ کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بریچنگ کا فیصلہ ٹیکنیکل کمیٹی کرے گی، آئیدر بند کو بریچ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن کل تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ امیڈیٹلی جو شیرشاہ بند ہے اس پر اس کے پشتوں پر پانی کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے بعد انتظامیہ نے امیڈیٹلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ بند کو بریچ کر دیا جائے گا، شگاف ڈال دیا جائے گا، اور قریبی بستیوں سے رات کو ہنگامی صورتحال میں شہریوں کا انخلاء بھی کروایا گیا تھا۔ لیکن اگر اس وقت کی بات کی جائے تو رات کے ٹائم تک ابھی تک بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے انتظامیہ کا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی اس طریقے کی صورتحال دیکھنے میں نہیں آ رہی کہ شگاف ڈالا جا سکے، یا اس کا فیصلہ آئندہ آنے والی جو وقت ہے اس پر چھوڑا گیا ہے۔ لیکن آج دن بھر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج دن بھر سچویشن یہ رہی کہ ٹیمیں موجود تھیں، ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں موجود تھیں، پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، ٹریفک کو ہر قسم سڑک کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا، اور ایون کہ جو نزدیکی کاروباری مراکز ہیں انہیں بھی مکمل طور پر
खाली करवा लिया गया था। इवन शेरशाह रोड की बात की जाए तो शेरशाह रोड पर कसीर तादाद में पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स को खाली करवा लिया गया था। मेन होटल्स हैं तो उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद करवा लिया गया था और उन्हें कहा भी ये गया था कि शगाफ डालने की वजह से चूंकि पानी इस साइड पर भी आ सकता है तो आप तमाम तर चीजों को क्लोज कर दें। लेकिन आज दिन भर कोई इस तरीके का फैसला नहीं किया गया। हैवी मशीनरी भी मौजूद रही, पुलिस भी मौजूद रही, इंतजामिया के ऑफिशियल्स भी मौजूद रहे। लेकिन अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में कोई शगाफ डाला जाता है या नहीं डाला जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो तरीमू से रेला आ रहा है वो तकरीबन 5 लाख क्यूसिक है जो दरियाए चनाब से गुजरता हुआ हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर आएगा। अकबर फ्लड बंद के बाद वो शेरशाह बंद पर आएगा। इसीलिए शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फैसला किया गया था कि ये वाला पानी आगे करीबी बस्तियों में डिस्पर्स हो जाएगा और पीछे से जो पानी आएगा उसकी गुंजाइश हो जाएगी और ज्यादा नुकसानात नहीं होंगे। लेकिन ताहाल इंतजामिया की जानिब से क्योंकि कोई फैसला नहीं किया गया तो ये कहना कुछ भी कबल अज वक्त होगा कि इंतजामिया ब्रीच करती भी है या नहीं करती ब्रीच। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला रोड पर हैवी ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर उसका दाखिला बंद किया गया है और जो छोटी ट्रैफिक है जिसमें मोटरसाइकिलें, जिसमें गाड़ियां, लोडर रिक्शे, चिंगची, इन्हें चलने की इजाजत दी गई है ताकि जो लोग करीबी बस्तियों में जाने वाले हैं, जो लोग मुल्तान से कनेक्टिविटी करते हैं मुजफ्फरगढ़ और मुजफ्फरगढ़ से आगे डीजी खान को क्योंकि ये सड़क मिलाती है तो उन तमाम तर लोगों के लिए ट्रैफिक और ये सड़क खुली रखी गई है। जी हसन मलिक, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब में जिधर देखें उधर सैलाब ही सैलाब है। तफसीलात ब्यूरो चीफ रजा मलिक की इस रिपोर्ट में। दरिया सतलुज की तबाहकारियां, चिश्तिया में हर तरफ पानी ही पानी, कई बस्तियां पानी में डूब गई, सड़कें बह जाने से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया, कीमती फसलें तबाह हो गईं, किसान परेशान, इंतजामिया से इमदाद का मुतालबा कर दिया। पानी बहुत काफी है इधर सर, रास्ते बंद हैं बिल्कुल और जाने का रास्ता बहुत मुश्किल से है। कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सहूलियत नहीं मिली, लोग अपनी मदद अपने तहत जा रहे हैं। मेलसी हेड साइफन पर पानी का बहाव मजीद बढ़ने लगा। हिफाजती बंद टूटने से 7 मौजाजात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों एकड़ ज़राई रकबा दरिया बुर, लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना। कहा किसी चीज की जरूरत नहीं, इंतजामिया सिर्फ कश्तियां फराहम करे। इस टाइम इतने ना कोई कश्ती दा सहूलत है, माइया बच्चे सब इवें गुजरते पैन। सुबह से असां इन्हां आदे खड़े हैं भाई काल तू पानी दा रस्ता बांधे, एक कश्ती तो भेज दो इत्थे, बिल्कुल कश्ती की कोई सहूलत कोई नहीं। लोधरा की मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाबी पानी से कब्रिस्तान भी मुतासर। खैरपुर टामे वाली में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब ने लोगों को बेघर कर दिया। मुतादिद बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें बर्बाद हो गई। मुतासरीन का कहना था कि माल मवेशी सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। जी बंद रोटा सैफ के नजदीक बस्ती पुकारा आगा तो बंद दिफाई बंद नहीं, बड़ा वड्डा बंद जो जिमें रोटा साडे तो ढेर इलाका होंदी ज़्यादा चा गया सैलाब दी, उनकी वजह नाल साडे ढेर नुकसान थी गया है। हतेजी में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। बस्ती पेरन के सरकारी बंद के टूटने के खतरात बढ़ गए। अहले इलाका अपनी मददाब के तहत बंद मजबूत करने लगे। इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज, कहते हैं इमदाद के लिए कोई नहीं आता, सब कुछ खुद कर रहे हैं। इधर कोई भी नहीं आ रहा, हम खुद अपनी हिफाजत खुद ही कर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा इधर। हम खुद ये आया कल नंबर आ रहा है, वो बोल रहे हैं 500 दो, फिर हम मिट्टी डाल के देंगे। मैक्लोडगंज से उच्च शरीफ तक दरिया सतलुज की तबाहकारियों की दास्तान है। हर तरफ पानी ही पानी, बस्तियां, फसलें, सब कुछ सैलाबी पानी की नजर। मुतासरीन का इंतजामिया से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में दरिया शनाब की सूरत हाल संगीन। शेरशाह बंद पर पानी की सतह खतरनाक लेवल तक जा पहुंची। में शेरशाह बंद पर कट लगाने के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि हेड तरीमू से आने वाले 5 लाख से ज्यादा क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला पहुंचने पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शगाफ डालने के नतीजे में मौजा, सुल्तानपुर, हमड़, जमहूर और कचोर समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। डीसी मुल्तान वसीम हामिद सिंधु ने शहरियों को इनखला के लिए पाक फौज की खिदमत हासिल कर ली हैं। मुतासरा इलाकों में इनखला का अमल जारी है। मुल्तान में बनाए गए 28 रिलीफ कैंपों में अब तक 15,000 से ज्यादा मुतासरीन को मुंतकिल किया जा चुका है। इधर ब्रीचिंग पॉइंट के अतराफ में तमाम कारोबारी मराकिज बंद कर दिए गए हैं। अलबत्ता शेरशाह पुल पर ट्रैफिक की रवानी जारी है। जिले इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार किया है कि मुतासरा बस्तियों से फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।
उधर रंगपुर में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। दूसरा बड़ा सैलाबी रैला हर चीज बहा ले गया। बुजुर्ग शहरी आखिरी उम्र में सब कुछ लुटाकर बेबसी की तस्वीर बन पर बैठे हैं। रंगपुर में दरियाए चिनाब के सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। दूसरे सैलाबी रेले से 28 मौज़ूआत मुकम्मल तौर पर डूब गए, जबकि 50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। बंद पर मौजूद 80 साल बुजुर्ग नवाज की आंखें सैलाब की दर्दनाक दास्तान सुनाते हुए नम हो गईं। बुजुर्ग नवाज का कहना था, 1992 से दर्जनों सैलाब देख चुका हूँ, मगर इतना खतरनाक सैलाब आज तक नहीं आया। घर सैलाब में डूब गए, जानवर बह गए, फसलें तबाह हो गईं। हर तरफ खौफनाक मनाजिर हैं। मंजियां खड़ियां कर को फूड कल सारी दिहाड़ बारिश हुई, कई नु फरियाद करा अल्लाह नु करे ने नुकसान हो गए, वाइयां बोट गई, मकान ढह गए, माल लड़ गई, सारे बंदे बैठे काशा नहीं। अल्लाह ताला दी आस देखो सारी मखलूक फंसी पई है, कुछ निकली पई है, कोई इमदाद का शय का ही। बुजुर्ग नवाज का मजीद कहना था कि अल्लाह के सहारे फ्लड बंद पर बैठे हैं, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। चारपाइयों पर तरपाल लगाकर बच्चों के लिए छत बना रखी है, किसी ने इनसे पूछा तक नहीं और ना ही इमदाद मिलने की कोई उम्मीद है। अभी भी लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, जो निकल आए वो भी मुश्किल से जी रहे हैं। बुजुर्ग नवाज ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि सैलाब मुतासरीन को सहूलियात फराहम करने के साथ साथ बहाली के लिए भी फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। न्यूज अपडेट आपने जानी। अब आपको बताएं कि कुरैशी वाला थाने की हदूद बस्ती हयातपुर में वालिद को बचाने के लिए सैलाबी रैले में कूद जाने वाले 2 बच्चों समेत 3 अफराद को बहादुरी से बचाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा और रेस्क्यू को शाबाश। वज़ीर आला ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर तहनीती पैगाम लिखते हुए कहा कि दरिया की बिफरी लहरों का मुकाबला करके 2 बच्चों समेत 3 अफराद को बचाना डिप्टी कमिश्नर और उनकी इंतजामिया समेत रेस्क्यू का बड़ा कारनामा है, जिस पर वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जनूबी पंजाब में दरियाए चनाब और सतलुज की तबाहकारियां जारी। तफसीलात रिपोर्ट में। रहीम यार खान के इलाके नूरवाला में दरियाए चिनाब ने तबाही मचा दी। तहसील लियाकतपुर के 4 यूनियन कौंसलें ज़ेर आब नूरवाला, गुल मोहम्मद, लंगा, दश्त और जो गुलाब शाह सैलाबी रेले की लपेट में आ गए। घरों में पानी दाखिल, इन बस्तियों का दूसरे इलाकों से राब्ता कट गया। हजारों अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, मगर इस कड़े वक्त में पाक फौज के जवान सैलाब में घिरे अवाम के मुहाफिज बनकर सामने आए हैं। ख्वातीन, मासूम, बच्चे, बुजुर्ग सभी फौज के मजबूत हाथों में महफूज हैं। घरों की छतों पर पनाह लिए हजारों अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। सैलाबी रेला पूरी शिद्दत के साथ बस्तियों को निगल रहा है, लेकिन पाक फौज के जवान जान हथेली पर रखकर जिंदगियां बचाने में मसरूफ। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है। सैलाब में घिरे हजारों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब ज़दा इलाकों में राशन, टेंट्स, जरूरी सामान की तरसील की जा रही है। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अवाम को खतरनाक इलाकों से फौरी इनखिला की हिदायत की गई है।